सर एक और क्वेश्चन है, अभी मैं बहुत सारे कॉलेजेस में देखती हूँ कि स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम, फॉरेन एक्सपोजर स्टूडेंट्स को देख रहे हैं, ये काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को अट्रैक्ट भी करता है। बिकॉज कई बार मैं देखती हूँ कुछ कॉलेजेस अच्छे नहीं भी हैं, बट जस्ट बिकॉज दे आर प्रोवाइडिंग दिस फॉरेन एक्सपोजर टू स्टूडेंट्स, हमें एक इंटरनेशनल ट्रिप दे रहे हैं, तो स्टूडेंट्स वहाँ उस कॉलेज के अंदर चले जाते हैं और आपके कॉलेज के पास भी स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम है। तो क्या ये भी एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि स्टूडेंट को अट्रैक्ट करने के लिए है, या फिर इसके पीछे कुछ क्या चीज़ें हैं? See, we have something very, very interesting happening at Chitkara University. Our global partnerships are very, very strong. Then there is something very unique which happens at Chitkara is Global Week. वो Global Week in the month of October is held every year. And here, more than 55 professors from across the continents, they come to Chitkara for six days or a week, and they participate in our academic activity. For instance, we had a lady who came from Georgian College, Canada. So she was rather here, and she taught these group of students in MBA for a week. It's difficult to send 100 students abroad, right, but easier to get a teacher or a professor from Canada to teach them. So there is a cross-cultural, there is a cross-continental exchange happening. That is one. Secondly, we have also started with certain overseas internships. It could be 8 weeks of internship. It could be a semester exchange of internship also. So that is done through various, programs that we run. It could be in engineering. It could be in BBA, BCom, and also. So there's a lot of opportunity, we have international collaborations. Right. And these students, they pay just the fees, which is very, very nominal. There is nothing that is, to attract them for marketing or something like that. It is the student gets to have confidence of visiting a foreign country. International exposure. Yes. It adds value to his credential. He writes in his resume that he's studied overseas, maybe small 8 weeks or maybe 6 months of study, and is a lifelong experience. If a university cannot offer, I'm sure it becomes difficult later after studies. And similarly, quite a large number of groups, cohorts, come to study. We have a team coming from France. Recently, there was a group of Kenyan students who visited Chitkara. So cross-cultural, cross-educational exchanges happen. So it adds beauty to the whole, and it gives flavor to both the sides. Even foreigners also enjoy coming. We had Germans who visited us. So our hospitality programs, they got to learn the dishes which are made in India. So the culture of India, the essence of India. So this is how it मेरा एक क्वेश्चन है, आपने बोला कि ये स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम होता है, तो ये किन स्टूडेंट्स को ये अपॉर्चुनिटी मिलती है? सारे स्टूडेंट्स को मिलती है या फिर कुछ सर्टेन पैरामीटर्स होते हैं? नहीं, इसमें ऑप्शनल होता है. इट कैन नॉट बी मेड कंपल्सरी. इट इज एन ऑप्शनल. और उसमें क्या होता है, बच्चे को बिल्कुल क्लियरली बताया जाता है, अगर यूरोप जाना है तो इतना खर्चा होगा, इतना टाइम है, दीज आर द प्रॉस, दीज आर द कॉन्स, दे गेट. पेरेंट्स आर also educated and brought about awareness on this. So it's a choice. So basically आप एक opportunity, एक platform provide करते हैं. Then it is purely, उसमें जरूरी नहीं क्लास में 100 बच्चा है, हो सकता है 3 बच्चे ही जाएं, है ना? But then at times it is seen by the parents. जो parents देख रहे हैं, कई बच्चे नहीं बाहर भेजना चाहते. Yesterday only, so rather day before yesterday, there was a parent, मेरे कॉलेज का student था. He was getting an opportunity to go to France. So वो कहता है जी, मैंने ये क्लास में अनाउंस हुआ, मगर मैं अब अपने बच्चा, he is too young to be sent. उसके अगर उसकी मम्मी अलाउ नहीं करती, and therefore he should not go. I said, choice is yours. Maybe in the final year he can go. He is here for 3 years of study, BCom में. बीकॉम में 3 साल का पढ़ाई है, तो फर्स्ट ईयर में नहीं जाना तो थर्ड ईयर में ही विल ग्रो बाय दैट टाइम. ही वुड हैव ग्रेटर एक्सपीरियंस. सो चॉइस होती है, एंड अबंडेंट चॉइस है, इसमें बहुत ज़्यादा चॉइस है. कोलैबोरेशंस आर इंक्रीजिंग ईयर बाय ईयर. सो अगर हम सर चॉइसेस की बात करें तो लाइक कौन कौन सी कंट्रीज इंक्लूडेड है आपके स्टूडेंट एक्सचेंजेस प्रोग्राम? हमारे जी बहुत ज़्यादा. आवर स्टूडेंट्स हैव गॉन टू अमेरिका,
यूरोप में तो बहुत ही अपॉर्चुनिटीज़ हैं, यहाँ तक कोरिया में भी हमारा एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स गया है, एंड यूरोप हो गया, सिंगापुर जाते हैं बच्चे, एंड कनाडा में हमारा एक नाउ वी आर वर्किंग ऑन अ प्लान वेयर देयर कुड बी अ मैपिंग के 1 year study or 2 year study in India and 2 year study in Canada. This is also possible. It is going to happen. So there is, the world, the globe is shrunk rather. It's a global village. And gone are the days के जब foreign जाना बड़ा मुश्किल होता था. आजकल, you know, they say कि the international exposure is so readily available that both the sides are looking. Indians are looking to go abroad and foreigners are looking forward to visit India for study purposes. राइट सर, एक अब्रॉड का जो सेक्शन होता है वो कुछ ज़्यादा ही, मतलब हम अगर रेज्यूमे की भी बात करें तो काफ़ी वो बिल्ड कर देता है हमको इंटरनेशनल एक्सपोजर के लिए. सर आपने अभी इंटर्नशिप की बात की थी, तो मैंने कहीं पढ़ा था कि आपका जो हाईएस्ट पेड इंटर्नशिप है वो 75,000 स्टाइफंड रहा है. सो इज़ इट ट्रू सर? क्योंकि स्टाइफंड की अगर हम बात करें तो काफ़ी कम रहता है. See, I would see there could be a 1 or 2 odd cases where such a peak is achieved, but frankly speaking, internship is a period to learn. Right. It is to hands-on experience, and rather, मेरा तो belief, I come from the older generation of education. मैं 40 साल 35 साल पहले 40 साल पहले पढ़ा था खुद. उस टाइम तो इंटर्नशिप के लिए पैसे देने पड़ते थे. हमारे टाइम पे अगर कोई इंटर्नशिप करने जाता था तो उसको लर्निंग के टाइम पे पैसे देने पड़ते थे कि ये 20,000 रुपये या 15,000 रुपये का हम पे कर रहे हैं और हमको कुछ सिखाओ. मगर द ट्रेंड हैज़ चेंज्ड. नाउ कंपनीज आर पेइंग, you know, for having some interns. So this should not be evaluated by way of money. First thing, internship चाहे वो 15,000 की है या 25,000 की है या whatever, it should not term. It is a period of learning. क्योंकि जो थियरी हमने क्लासरूम में पढ़ी है उसको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस करना और उसको हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस, उसको कंसोलिडेट करना, वो एक्सपीरियंस इज इंटर्नशिप. मगर एनीथिंग मैं समझता हूँ 15,000 से लेकर 25,000 तक अगर बच्चे को इंटर्नशिप का अलाउंस मिल रहा है, शुड बी रीजनेबली गुड. मेरा एक और क्वेश्चन है कि आपका ड्यूरेशन क्या रहता है? जैसे बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ जो एमबीए ऑफर करती हैं, उनका जो इंटर्नशिप जो आपका एक दूसरा प्रोग्राम है उसकी बात नहीं करिए, जो जनरल एमबीए है आपका, उसमें इंटर्नशिप का ड्यूरेशन क्या रहता है? इट्स जस्ट 1 month इंटर्नशिप? नो, हमारे जो फ्लैगशिप प्रोग्राम्स है उसका इंटर्नशिप का पीरियड है 1 to 2 months और मैक्सिमम 3 months. जो फ्लैगशिप प्रोग्राम्स हैं वेयर स्टडी इज गिवन ग्रेटर इंपॉर्टेंस. It's deep diving into the study environment. It is learning the outcome, and it is interaction with the faculty, with the guest faculty, with the subject matter experts, industry experts. उनको तो संडे के दिन भी पढ़ाया जाता है flagship program. So when I say कि वो बहुत ही पढ़ाई heavy on academics, और उसमें सारे के सारी फैकल्टी PhD है, इंडस्ट्री से बहुत बंदे आते हैं. It is immersion, in industry immersion I would call it. और जो प्रोग्राम हैवी ऑन स्किल्स है और हैवी ऑन इंटर्नशिप है, उसमें हम 1 साल से लेकर 1.5 साल तक हम एकेडमिक पढ़ाते हैं. वहाँ पे 6 महीने की इंटर्नशिप होती है. 6 महीने की इंटर्नशिप इज़ अ पीरियड इनफ फॉर द स्टूडेंट टू हैव हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस. अगर मैं रिटेल स्टोर के ऊपर या मेडिकल सेल्स रिप्रेजेंटेटिव को मैं मार्केट में भेजूंगा, वो 6 महीने में लर्निंग उसकी तभी खुल के आएगी. उसने केमिस्ट को भी विजिट करना है, एवरी डीलर सर्वे फॉर्म भी भरना है. अगर रिटेल में जाता है तो रिटेल में भी उसी को पता लगता है कि ये स्टोर के रिलेटेड ऑपरेशंस क्या हैं. स्टोर मैनेजमेंट है, श्रिंकेज है, विजुअल मर्चेंटाइजिंग है, फीफो है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट. हर एक चीज़ वो स्टोर पे उसको, और नॉट एक स्टोर, उसको मल्टीपल ब्रांड्स ऑफ स्टोर पे जाना पड़ता है. इट्स अपेरल्स, इट इज़ कॉस्मेटिक्स, इट इज़ लाइफस्टाइल, इट इज़ ग्रॉसरी, इट इज़ फूड एंड ग्रॉसरी एंड डिफरेंट काइंड ऑफ फॉर्मेट्स ही और शी हैज़ टू लर्न. और वही चीज़ होता है वो 6 महीने के टाइम पे ही कर सकता है. उसकी इंटर्नशिप 1-2 महीने की नहीं हो सकती. सर अभी आपने बात करी थी प्रैक्टिकल नॉलेज और थियोरेटिकल नॉलेज के बारे में, तो जैसे आप मीडिया कोर्सेज भी ऑफर करते हैं, काफ़ी ऐसे कोर्सेज होते हैं जिसमें प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट होती है.
जिसके लिए हमको स्टूडियोज़ लगते हैं, काफ़ी चीज़ें लगती हैं। तो सर इसमें आप लोग क्या प्रोवाइड कराते हैं? आपकी यूनिवर्सिटीज़ में क्या क्या फैसिलिटीज़ अवेलेबल रहती है प्रैक्टिकल एक्सपोजर को लेकर? मैं कहता हूँ आई हैव येट टू सी। मैं हालांकि बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ को विज़िट करता हूँ, आज भी भोपाल में आया हूँ, आपके कॉलेज में आया हूँ, भोपाल कॉलेज ऑफ सोशल साइंसेज विज़िट किया मैंने, इतने बच्चों को मैं मिला। आजकल इंफ्रास्ट्रक्चर इज़ द बैकबोन। आपने मीडिया की बात की, आप चिटकारा यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ में आइएगा और हमारा एक स्ट्रॉन्गेस्ट पिलर जो अगर किसी कोर्सेज का है वो मीडिया एंड जर्नलिज्म है। उसमें द काइंड ऑफ लैब्स, फोटोग्राफी लैब्स, उसमें जो स्टूडियो है, न्यूज़ सेटअप है, न्यूज़ रूम्स हैं, और उसमें जो एफएम चैनल का जो कनेक्ट है 20 किलोमीटर का ब्रॉडकास्टिंग का है। सो आपका एक खुद का रेडियो चैनल है 20 किलोमीटर की, हाँ, उसकी द रेडियस वे दैट वी केटर, और वो एक इतना स्ट्रॉन्गेस्ट पिलर है कि मैंने आज की डेट में ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं किसी और यूनिवर्सिटी में देखा जो चिटकारा यूनिवर्सिटी में है। एंड एज अ रिजल्ट हमारे जो मीडिया स्टूडेंट्स हैं, दे आर डूइंग सो गुड, they are doing so marvelous, I would call, that we are so proud of them. The kind of exposure on the practical aspects of media and journalism they get is amazing. सर एक क्वेश्चन है, बहुत सारी कॉन्वर्सेशन हो गई, बहुत सारे क्वेश्चंस भी पूछ लिए गए, एंड हर क्वेश्चन में आपने बताया कि चितकारा बहुत अच्छा है। ऑब्वियसली आप वहाँ के वाइस प्रेसिडेंट हैं तो आपको पता होगा, एंड दूसरी चीज़ कि हम कॉलेज के हैं तो हमें, आपका कॉलेज क्लेम करता है 5.5 लाख 5.4 लाख एवरेज प्लेसमेंट टू MBA एस्पिरेंट्स। मैंने कई सारे कॉलेजेस की वेबसाइट्स पे देखा है 12 लाख एवरेज है, 8 लाख एवरेज है, इवन 6-6.5 लाख क्लेम करते हैं। बट जब आप बैक एंड पे स्टूडेंट से बात करते हैं तो उतना एवरेज रियलिटी में होता नहीं है। आप ये मान के चलिए कि अगर कोई कॉलेज 5.5 क्लेम कर रहा है तो वो 4, 3.5, 4, 4.5 इस तरह का पैकेज मिलता है। जो मैं अगर आपको बैक एंड पे बात करूँ तो इसमें कितना रियलिटी है कि जो आप एवरेज क्लेम करें, क्योंकि एट द टाइम ऑफ चूजिंग कॉलेज बच्चा इंफ्रास्ट्रक्चर फैकल्टी से ज़्यादा जो जिसको प्रिविलेज देता है वो होता है प्लेसमेंट किसी कॉलेज का। I would tend to differ here a bit. एक बच्चे को सिर्फ प्लेसमेंट का पैकेज दे के चूज करना इज नॉट इनफ, frankly telling you. See these packages, these remuneration scales, they keep differing. Yeah, there is a dip in economy, probably there is a lesser package. Yes. If the economy is booming, there is a greater package, and there is it's happening off and on a different scale every year. What one has to see as a personality enhancement program, MBA I call it is a holistic development. I don't see package is one of the outcomes of your MBA, and is a very, very small outcome in comparison to the whole image that you make of MBA. MBA is a lifelong, it's a career path. अगर मैं आज बच्चों को एड्रेस कर रहा था, ऑन एन एवरेज एक लाइफ स्पैन नौकरी की या बिजनेस की या वर्किंग लाइफ स्पैन प्रोफेशनल वो 35 से 40 बरस की होती है। बंदा बल्कि अगर मैं नौकरी कर रहा हूँ 35-40 बरस में नौकरी कर पाऊंगा इफ आई एम अर्निंग एज अ प्रोफेशनल, राइट, एज एन एक्टिव प्रोफेशनल, राइट। सो व्हाट हैपेंस, यू हैव टू लुक इन द होलिस्टिक वे, आपकी फाउंडेशन क्या बन रही है। हो सकता है कई मैं आई वॉज इंटरेक्टिंग विद माई डीन्स, मेरे एक डीन ने मेरे को बताया, वो हेल्थ केयर के डीन है, हेल्थ केयर MBA के। सरप्राइजिंगली ही टोल्ड मी कि अगर जेनरिक या आपकी नॉर्मल MBA का पैकेज 6-7 लाख या 8 लाख रुपया रहता है तो हेल्थ केयर की MBA का स्टार्ट हो सकता है 4 लाख में हो। दिस इज व्हाट ही 3 दिन पहले की बात है। और वो कहते हैं जी 4 लाख को देख के बच्चा ये कहे कि मैंने MBA हेल्थ केयर नहीं करना क्योंकि मेरे काउंटर पार्ट्स जो जर्नल MBA कर रहे हैं उनको 7 लाख का पैकेज मिल रहा है, दैट विल बी अ फॉल्स इमेजिनेशन। उसका फ़र्क क्या बताया उन्होंने कि कोई बच्चा हो सकता है 2 साल की MBA हेल्थ केयर करके 4 लाख का पैकेज ले रहा है, मगर 5 साल के बाद द सेम कैंडिडेट जिसने 4 लाख पे शुरू किया था इज बीइंग ऑफर्ड 25 लाख और 30 लाख का पैकेज आफ्टर 5 years ऑफ सर्विस,
वेयर एज ऑन द अदर कैटेगरी, अगर कोई जर्नल एमबीए वाले ने 7 लाख पे शुरू किया और 5 साल के बाद उसका पैकेज हो सकता है 10-12 लाख का ही हो. सो इट्स अ वेरी वेरी सब्जेक्टिव एंड वेरी वेरी रिलेटिव. किसको ग्रोथ मिल रही है, इंडस्ट्री में वैक्यूम कहाँ पे है, ग्रोथ कहाँ पे है आपकी, यू नो व्हाट इज द काइंड ऑफ पाथ दैट यू आर गोइंग टू प्रोग्रेस in this particular field, because healthcare में उस लेवल पे 5 साल पे वैक्यूम है. You know, Fortis हो गया, Max Hospitals हो गया. So there is an exponential growth in by way of your remuneration package and also by way of your what do you call designation and all that. So this is something, अगर कोई सोचे कि मैंने सिर्फ फर्स्ट पैकेज, फर्स्ट जॉब शुड बी वेलकम, मेरे को भले 4 लाख रुपया मिले या 6 लाख रुपये मिले, आई शुड बी हैप्पी टू स्टार्ट टू हैव अ गुड बिगिनिंग. बट सर देखा गया है कि स्टूडेंट्स वो एक मास्टर्स कोर्स होता है एमबीए, तो डेफिनेटली वो चाहते हैं कि एमबीए के बाद उनकी एक अच्छी जॉब हो, एक हैंडसम सैलरी हो. Yes. और एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी की अगर हम बात करें तो वो कंपेयर करते हैं आईएम कॉलेजेस से कि अगर हमें आईएम कॉलेजेस नहीं मिल पाए, हम प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ जा रहे हैं लाइक चितकारा यूनिवर्सिटी, तो हमें बेसिक स्ट्रक्चर ऐसा मिले कि हम आफ्टर एमबीए रिलाई कर पाएँ अपने फ्यूचर को. एंड देन एक्सपीरियंस जो आप कह रहे हैं वो तो डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है. बट हर स्टूडेंट का रहता है कि यार एमबीए के बाद मुझे एक ऐसी जॉब चाहिए कि मैं रिलाई कर पाऊँ. Absolutely, and to answer this question, see, our highest package of MBA is also beyond 30 lakhs. Okay. But then there could be 1 or 2 students who strike such a deal, you know, exceptional students. But on an average, our starting package is very attractive. And the best part is, it is not only the package, it is the brand of companies which come, you know. And starting a salary of, let us say, 6 lakhs and above, Right. should be considered as a very very attractive package. And mean जो है majority, अगर आप average निकालें तो अगर आपके 100 स्टूडेंट हैं उसमें एवरेज अगर है पैकेज 8 लाख से ऊपर है, that should be considered very good and very attractive. Yeah. मैम तो अपन